हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेट अस फर्स्ट नो द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. As we all know, there is one branch of accounting which is known as management accounting, and nowadays this is very important accounting for the company organizations. So in this video we will discuss about our management accounting part. So let us proceed with our introductory part. The term management accounting refers to accounting for the management, that is accounting which provides necessary information to the management for discharging its functions. The functions of the management are planning, organizing, directing, and controlling. Thus, management accounting provides information to management so that planning, organizing, directing, and controlling of business operations can be done in an orderly manner. However, this discussion is a general definition of management accounting. Most specific definitions have been given by different authorities. Now let us see that definitions. Firstly, we will discuss about the Institute of Chartered Accountants of England and Wales defines management accounting as any form of accounting which enables a business to conduct more efficiently can be regarded as management accounting. बिजनेस को इफ़िशियंट तरीके से कंडक्ट करने वाली कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम होगी तो उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाएगा. अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स द मेथड्स एंड कंसेप्ट्स necessary for effective planning, for choosing among alternatives business actions, and for control through the evaluation and interpretation of performance. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेथड्स और कंसेप्ट्स जो कि हमारी इफेक्टिव प्लानिंग के लिए ज़रूरी है, इन मेथड्स और कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा. उसी के साथ साथ हमारे पास जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स है उनमें से हमारे बिजनेस एक्शंस को चूज करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा, और उसी के साथ साथ कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हमारा इवैल्यूएशन का इंटरप्रिटेशन और परफॉर्मेंस का इंटरप्रिटेशन करने के लिए कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगा. तो ये है हमारी डेफिनेशंस जिसमें हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हमें पता चलता है. अब हम बात करेंगे हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस ऑन डेफिनेशन पार्ट, वी मस्ट नो द नेचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें सही मायने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पहचान कराते हैं. तो चलिए वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा टू द मैनेजमेंट on the basis of which they take decisions to achieve organizational goals and improve their efficiency. In this section, we will discuss the main characteristics of management accounting. So, very first, we will discuss the first characteristic, that is to provide accounting information. Information is collected and classified by the Financial Accounting Department and presented in the way that suits managerial needs to review the various policy decisions of the organization. अकाउंटिंग यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो डेटा कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसे जो मैनेजमेंट को अच्छा लगे या फिर मैनेजमेंट को जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसमें कन्वर्ट करके प्रेजेंटेशन करना, यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज़ है. The next characteristics is cause and effect analysis. One step further from financial accounting, management accounting works to know the reasons of profit or loss of an organization. It works to find out the causes for loss and also study the factors which influence the profitability. Therefore, cause and effect is a feature of management accounting. जैसे कि हम लोग जानते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेक्ट करने का काम कर दिया है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके एक स्टेप फर्दर होती है. तो वो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को जज करेंगी, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड है, इसके बारे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करेगी. इसीलिए इसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के नाम पर जाना जाता है.
नेक्स्ट फीचर जो है वो है स्पेशल टेक्निक एंड कंसेप्ट्स. बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, standard costing are main techniques used in financial accounting for successful financial planning and analysis and to make financial data more useful. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है वो बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे फीचर्स यूज़ किए जाते हैं हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर. तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो फिनेंशियल डेटा है वो ज़्यादा यूजफुल हमें हो जाता है. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिसीजन मेकिंग. Studying various alternative decisions, studying impact of financial data on future, supplying useful data to management, helping management to take decisions is a part of management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. इसमें हम लोगों को जो वेरियस अल्टरनेटिव है उसके ऊपर डिसीजन लेने को ये मदद करता है. उसी के साथ साथ फिनेंशियल डेटा का इम्पैक्ट फ्यूचर में कैसे पड़ेगा ये भी बता देता है. और हमें मैनेजमेंट के लिए जो यूजफुल डेटा है उन्हें भी सप्लाई करने का काम करता है. और ये सब चीज़ें करने के बाद ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को सारी डिसीजंस लेने में ईजी हो जाता है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर next nature of our management accounting, that is achieving tasks. Financial data is used to set targets of the company and to achieve them. Corrective measures are used if there is any deviation in actual and targeted tasks. This all is done through management accounting with the help of budgetary control and standard costing. जैसे कि अभी हमने देखा कि budgetary control और standard costing जैसे फीचर्स हम लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने मिलते हैं. तो इनका यूज करके हम लोग जो हमारा टारगेट सेट किया गया होता है उस टारगेट को एक्चुअल अकम्प्लिश करने के लिए यूज़ कर लेते हैं. और उसके अंदर जो कोई गैप है उस गैप को फाइनलाइज करने के लिए भी हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो हमारे गोल्स को, हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़फुल साबित होती है. अब नेक्स्ट फीचर जो है वो है नो फिक्स्ड नॉर्म्स. नो डाउट टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर सेम, but at the same time uses of these tools depend upon need, size and structure of any organization. Thus no fixed norms are used in application of management accounting. On the other hand, financial accounting totally depends on certain rules and principles. Therefore presentation and analysis of data may vary from one organization to another organization. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में अलग होता है. उसके साइज़ के हिसाब से, नीड के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अलग बन जाते हैं. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई फिक्स्ड नॉर्म नहीं बना है. जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हमें वो काम करना पड़ता है. तो ऐसा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने नहीं मिलता है. तो ये वाला जो है वो फ्लेक्सिबल सिस्टम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि ये टोटली मैनेजमेंट के लिए बनाया गया अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट को समझने के लिए बनाया गया अकाउंटिंग है. तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी नॉर्म देखने नहीं मिलेगा. अब नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है इंक्रीजिंग इफिशियंसी. व्हाइल इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, management accounting can spot the efficient and inefficient section of an organization. With the help of that, corrective step can be taken to rectify the inefficient part of the better performance. Hence, we can say that efficiency of a concern can be increased using accounting information. मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या करता है, हमारे इफ़िशिएंट एंड इनइफिशिएंट हर डिपार्टमेंट को वेरीफाई करता है, इवेल्युएट करता है और उनके परफॉर्मेंस को एसेस करता है. तो इसमें से हमें पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट पीछे छूट गया है. तो उसी के हिसाब से जो डिपार्टमेंट पीछे छूट रहा है उसके ऊपर करेक्टिव स्टेप्स जो है वो हमें लेने होंगे और उसके हिसाब से हमें उसको बेटर करना होगा. तो हमारी ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू आई हुई, ये हमें हमारी कंसर्न को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़िशियंसी इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल रहेगी. नाउ द नेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव इंस्टेड ऑफ डिसीजन मेकिंग. Decisions are taken only by top management using information provided by management accountants as classified in a manner which is useful in decision making. Decision making does not come under preview of accountant. It is only the top management who can take decisions. Thus, decisions of organization depends on caliber and efficiency of the management. अब जैसे कि हम लोग जानते हैं
कि हमारा काम यानी कि अकाउंटेंट का काम जो होता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम होता है। अकाउंटेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो काम है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है। तो टॉप मैनेजमेंट को जो डिसीजन मेक करना है उसके लिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके ऊपर हमारी टॉप मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग डिपेंड करेंगी। इसके लिए हमारे जो अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उनका कैलिबर और उनकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, और इसी के लिए हम लोग इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टडी करते हैं। और लास्ट फीचर जो हमें देखना है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो है फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प्स मैनेजमेंट इन फ्यूचर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग यूजिंग हिस्टोरिकल अकाउंटिंग डेटा। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो हमारी टॉप मैनेजमेंट को हेल्प कर देते हैं फोरकास्टिंग के लिए, हमारी पिछली हिस्ट्री यानी कि पिछले रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। तो पिछला जो रिकॉर्ड है हमारा उसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट फ्यूचर डिसीजंस जो है वो फ्यूचर डिसीजंस लेने में ईजी हो जाता है हमको। तो ये रहे हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे आपको अच्छी आइडिया आ चुकी होगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल है क्या और इसमें क्या किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट इन मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग लॉस। This is undertaken by presenting various statements and reports to enable management to formulate right policies in this regard. Management accounting has some objectives for it. तो अब हम देखते हैं वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात आती है हमारी प्लानिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस की। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग एज डिवाइडिंग इन एडवांस what is to be done, how and when it is to be done. To undertaken this task, management accounting provides information relating to past and helps in estimating future. It also furnishes data relating to alternative course of action so that management can take right decision. The information obtained from management accountant also helps the management to forecast the future. Finally, management formulates the policy of the business based on the fact that figures submitted by management accountant. जैसे कि हमने अभी अभी बात की थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करती है। तो हमारा जो अकाउंटिंग डेटा है या फिर हमारा जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट देगी, जिससे कि हमें लास्ट ईयर का रिकॉर्ड भी पता चलेगा, हिस्ट्री भी पता चल जाएगी और फ्यूचर में हमें क्या डिसीजंस लेने हैं इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो प्लानिंग करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब दूसरा जो है वो है कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। नाउ इन ऑर्डर टू एश्योर इफेक्टिव कंट्रोल वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सच एज बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजमेंट ऑडिट एटसेट्रा. Management accounting provides a proper managerial control system to the management. Reports are provided to the management regarding the effective and efficient use of resources. अब जैसे कि हमें पता है कि कंट्रोलिंग करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो स्पेशल फीचर्स है वो हमें यूज करने होते हैं, जैसे कि बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट का ऑडिट भी होता है तो वो ऑडिट भी है। तो इन सारे मेजर्स को हाथ में अगर हम लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग जो है वो कंट्रोलिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर हो जाएगा। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉपर मैनेजरियल कंट्रोल सिस्टम फॉलो करता है और इसमें जो है वो रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। जो रिपोर्ट्स है वो इफेक्टिव और इफिशिएंट यूज़ हमारे रिसोर्सेज के लिए साबित हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो है यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग. Organization is a process of coordinating the physical, human and monetary resources. It consists of conscious coordination of people towards a desired goal. It also includes delegation of authority and fixation of responsibility.
Management accounting is concerned with establishing responsibility centers, preparation of budgets, and fixing responsibilities on various persons. A good system of management accounting is helpful in creating an efficient organizational framework in industries. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो यूज़फुल होता है हमारी ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग जैसे कि हमें पता है कोऑर्डिनेशन का काम करती है, जिनमें हम हमारे फिजिकल ह्यूमंस को या फिर हमारे ह्यूमंस के वर्किंग को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है कि यानी कि किस एम्प्लॉय को क्या अथॉरिटी देनी है, उसको उस अथॉरिटी देनी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स ये सारी ऑर्गेनाइजिंग को काफ़ी अच्छे से बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है और बहुत अच्छे से हम लोग उसे यूज कर देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो होता है इंटरप्रेटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कलेक्टिंग अकाउंटिंग डेटा एंड एनालाइजिंग द सेम इज द की रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Management accounting provides relevant information in a systematic way that can be used by the management in planning and decision making. Cash flow, fund flow, ratio analysis, trend analysis, and comparative financial statements are the tools normally used in management accounting to interpret and analyze accounting data. अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करते हैं और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी मैनेजमेंट को पहुंचाते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करने के लिए इनका यूज कर सकती है। अब जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट जैसे टूल्स को यूज करते हैं, तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो अकाउंटिंग डेटा करने का काम होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें इंटरप्रेट और एनालाइज करने का काम जो है वो इन सारे टूल्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक हो जाता है कि हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट को ईजिली इंटरप्रेट करना ये हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हो सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव्स है वो है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डूइंग थिंग्स. It motivates employees to improve their performance by setting targets and starting incentive schemes. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मोटिवेशन देना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी आ जाता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब ये क्या करता है अकाउंटिंग सिस्टम, तो एम्प्लॉयज़ के लिए एक टारगेट सेट कर देता है और जो एम्प्लॉयज़ इन टारगेट को कंप्लीट करता है उन लोगों को इंसेंटिव भी मिल जाता है। यानी कि थ्रू इंसेंटिव हम लोग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे और जैसे कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर सकते हैं या फिर एक बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड हमारे काम करने के लिए क्या हो सकती है एम्प्लॉयज़ के लिए, इसके बारे में भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है। और इसी तरह से हमारी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके हमारी कंपनी की पोजीशन को और अच्छा कर सकता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें। अब नेक्स्ट जो है वो है मेकिंग डिसीजंस, जिसके बारे में हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजंस करने में हेल्पफुल होता है। सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन network as provided by management accounting. Applying techniques of different costing, absorption costing, marginal costing and management accounting provides useful data to the management to aid in their decision making. अब जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काफ़ी सारे टूल्स हैं, जो टूल्स यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि हमारी डिसीजंस को करते हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कि वो हमारे कंपनी के डिसीजंस ले। तो डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। Now it is a primary role of management accounting to inform and advise the management about the latest position of the company. हमारी कंपनी की लेटेस्ट पोजीशन को हमारी टॉप मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम अपडेट कराना हमारा काम होता है।
It covers information about the performance of various departments on regular basis to the management, which is helpful in taking timely decisions. हमारे डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में अगर कंटिन्यू टॉप मैनेजमेंट की ओर हमारा अप्रेजल जाता रहेगा तो वो यूजफुल होगा हमारा टाइमली डिसीजन मेकिंग करने के लिए. A management accountant also works in the capacity of an advisory to overcome any existing financial or other problems of an organization. अब हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है जो कि एडवाइजरी के तहत काम करता है हमारी टॉप मैनेजमेंट की ओर, वो हमारी एग्जिस्टिंग फिनेंशियल या और कोई प्रॉब्लम्स अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो उसे ओवरकम करने के लिए भी काम कर सकता है. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग अमंग डिपार्टमेंट्स की. अब जैसे कि हमने ये देखा है पहले भी कि हमारा काम ही होता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन by applying thorough functional budgeting and providing reports for the same to the management on a regular basis. अब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क डिपार्टमेंट पर बेस होता है. तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन हमें रखना है उसको थ्रू फंक्शनल बजटिंग और प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स टू आवर मैनेजमेंट, यानी कि हमारी टॉप मैनेजमेंट को हमारे फंक्शनल रिपोर्ट्स और हमारी थरो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देना है ताकि उसके हिसाब से हमारा जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है उसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सके, उसे हम लोग अच्छे से मेंटेन कर सके. और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिंग टैक्स और रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट. Any organization must comply with the tax system prevailing in the country they are operating from. It is a challenge due to the ever-increasing complexity of tax structure. Organization needs to file various kinds of returns with different tax authorities. They need to calculate the correct amount of tax and assure timely deposit of tax. अब हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर करने में या फिर हमारी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने में हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो बदलते रहते हैं या फिर टैक्सिंग सिस्टम जो है उसमें काफ़ी रिकमेंडेशंस या चेंजेस आते रहते हैं. तो ये वाली चीज़ों पर काम करना और ये वाली चीज़ों की करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी टॉप मैनेजमेंट तक प्रोवाइड करना ही हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है. तो इसीलिए उसे एडमिनिस्ट्रेटिंग टैक्स के नाम से भी हमारा ऑब्जेक्टिव जाना जाता है और उस हिसाब से हम उसके लिए काम भी कर देते हैं. तो दोस्तों ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने मिलेंगे, जो हमें देखकर इसके ऊपर काम करना है और हमारी मैनेजमेंट को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्पफुल या इफ़िशिएंट इफेक्टिव बनाना है ताकि हम अच्छे से अच्छा काम कर हमारा गुडविल भी बना सके और हमारा प्रॉफिट भी अर्न कर सके. अब हम हमारी नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जी हाँ दोस्तों, इसमें हम स्कोप के बारे में बात करेंगे. The scope of a subject means the areas which fall under the purview. As far as the scope of management accounting is concerned, it has a wide scope. Now let us discuss one by one. Firstly, we will discuss financial accounting. Financial accounting is primarily concerned with recording of transaction in a set of books, posting them into the concerned ledger accounts, and preparing trial balance and thereafter in preparing final accounts. The statements prepared under financial accounts form the basis for analysis and interpretation which serves as a meaningful data for managerial decision making. अब जैसे कि हमें पता है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसे लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बन जाता है और विथ द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी कर देते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ों का मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स का एनालिसिस हम कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन हम करते हैं और ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हमारी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है. तो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग में भी देखने मिलता है. नेक्स्ट स्कोप हम देखेंगे वो है कॉस्ट अकाउंटिंग. Cost accounting is primarily concerned with collection, analysis, allocation, and apportionment and absorption of overheads with a view to ascertain the cost of production of goods or service. Cost accounting furnishes useful data to management showing areas of insufficient and the steps to be
टेकन टू अवॉइड लॉसेस एंड वेस्टेजेस। अब जैसे कि हमें पता है कॉस्ट अकाउंटिंग पर हेड कॉस्ट के बारे में हमें मदद करता है या फिर पर हेड कॉस्ट हमें देता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें बताता है। अब जब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता होगी हमारी गुड्स और सर्विसेज की, तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन हमारे मैनेजमेंट को जब हम पहुंचाएंगे तो हमारी मैनेजमेंट को हमारे इनएफिशिएंट जो कोई एरियाज़ है उनके बारे में पता चलेगा। और ये जो इनएफिशिएंट एरियाज़ है जहाँ पर हम लॉस सफ़र कर रहे हैं, तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेना, मैनेजरियल डिसीजंस लेना हमारी मैनेजमेंट को पॉसिबल हो सकता है। तो हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप हमें देखने मिल सकता है। अगला है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, very often management relies on non-quantitative data. Such information is provided by statistical methods as they mainly includes sampling techniques, diagram, graphs and charts, time series analysis, index numbers, regression analysis, statistical quality control techniques, etc. Thus, statistical method is an integral part of management accounting. अब जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात आती है तो काफ़ी सारे मेथड्स है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारी मैनेजरियल डिसीजंस तक पहुंचने के लिए, जिसमें कि अभी अभी मैंने बताया सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ होती है, ग्राफ्स, चार्ट्स और डायग्राम यूज़ होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर का यूज़ होता है, रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स का भी यूज़ हम लोग कर देते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक साइड बाय साइड, यानी कि इनका एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप हमें देखने मिल जाता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम लोग इसका मैनेजरियल डिसीजंस तक पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट स्कोप जो है वो होता है ऑपरेशन रिसर्च। मॉडर्न बिजनेस इज फेस्ड विथ हाईली कॉम्प्लिकेटिंग प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स ऑफर साइंटिफिक सॉल्यूशन टू सच प्रॉब्लम्स। Some techniques of operation research used to solve problem as linear programming, queuing theory, waiting line models, PERT, CPM, etc. अब जो ऑपरेशन रिसर्च की हम बात करते हैं तो मॉडर्न बिजनेसेस को कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में या फिर हमारा डिसीजन मेकिंग लेने में, क्योंकि प्रोसेस ऑपरेशन जो होता है वो रिसर्च टेक्निक्स यानी कि साइंटिफिक सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम्स को प्रोवाइड करता है। अब ये जो साइंटिफिक सॉल्यूशंस जो मिलने वाले हैं वो किस तरह से मिलते हैं, तो वो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूइंग थ्योरी, वेटिंग मॉडल्स, वेटिंग लाइन मॉडल्स जैसी थ्योरी, पर्ट, सीपीएम का यूज करके हम लोग इस ऑपरेशनल रिसर्च में काम करते हैं। तो ये ऑपरेशनल रिसर्च में भी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है हमें देखने मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो है हमारा बजटरी कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेथड्स। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड मेथड्स ये नाम दिया गया है कॉन्शियस अटेम्प्ट को, जो साइंटिफिकली अप्लाइड होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए एंड हमारी मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ इट्स जनरली क्रिएट एंड मेंटेन एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो कंसर्न विथ इम्प्रूविंग मेथड्स, simplifying the processes and reducing the cost. Management accounting relies on organization and methods with a view to achieve its object. यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भी हमें हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप देखने मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम बजटरी कंट्रोल की। बजटरी कंट्रोल इज कंसर्न्ड विथ बजट्स कंप्राइजिंग एक्चुअल्स विथ बजट्स एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू सेट राइट एडवर्स डेविएशंस। अब बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो हमारे प्लानिंग के हिसाब से मैच कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है या फिर इसके बारे में हम लोगों को देखना होता है। In fact, management accountant acts as coordination when budgets are prepared for various departments. यानी कि हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं जब ईच डिपार्टमेंट के बजट्स बन रहे होते हैं, प्लानिंग प्रोसेस में होते हैं। Hence, budgetary control is a part and parcel of management accounting. तो यहाँ पर भी हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप देखने मिल जाता है। अब जब लॉ की बात करें तो मॉडर्न बिजनेस फंक्शंस विद इन द लीगल एनवायरनमेंट
decisions are also affected by the provisions of some of the important legislations such as Companies Act. अब जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है तो उसे कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो होता है वो हमारी बिजनेस को रन करने के सारे रूल्स को एंड रेगुलेशंस को बताता है। अब ये जो लीगल लेजिस्लेशंस है, ये इन लीगल लेजिस्लेशंस को हमें ध्यान में रखना होता है हमारे मैनेजरियल डिसीजंस को लेने के लिए। हेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलाइज हेवीली ऑन लॉ ऑफ द कंट्री। इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमारी कंट्री के लॉ को भी स्टडी करना होता है और वहाँ पर भी इसका स्कोप देखने मिल जाता है। अब जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था टैक्सेशन के बारे में, द कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, import duty and filing of returns promptly is undertaken under the direct supervision of management accountant. So taxation is an important aspect of management accounting. अब management accountant जो होगा वो टैक्सिंग सारी जो फंक्शंस है उनके ऊपर काम करेगा। तो टैक्सेशन के लिए एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट साबित होता है। अब हम नेक्स्ट स्कोप के बारे में जो अगर बात करेंगे तो वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स टू मीट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार कर देता है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट को अलग अलग लेवल्स पर ये सारी रिपोर्ट्स का प्रेजेंटेशन करना होता है। अब ये जो रिपोर्ट्स बन रहे होते हैं या सबमिट किए होते हैं वो पीरियडिकल बनते हैं और पीरियडिकल सबमिट करते हैं, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट की जो नीड है उसको देखकर हम लोग इसे बनाते हैं। हेंस रिपोर्टिंग सिस्टम जो होती है वो हमारे फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट के लिए एक बेसिस के हिसाब से सर्व हो जाती है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम MIS के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक अच्छा स्कोप हमें देखने मिल जाता है। अब इंटरनल ऑडिटिंग का भी काम हमारे मैनेजमेंट ऑडिटिंग में हमें देखने मिलता है। इंटरनल ऑडिटिंग इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमें पता है इंटरनल ऑडिटिंग में हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग जो होता है वो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटिंग को सिंप्लीफाई करने का टास्क करता है। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो अरेंजमेंट करता है हमारी इंटरनल ऑडिटिंग के लिए एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इस तरह से हमारा इंटरनल ऑडिटिंग हो जाता है। और लास्टली हम लोग बात करेंगे कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। द टर्म कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रोसेस्ड और प्रपोज्ड कैपिटल आउटले एंड देयर फिनांसिंग। It includes raising both long-term funds and their utilization when current funds are invested in long-term activities. It results in future benefits. अब ये जो होता है कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसे कहते हैं, उसे हम कैपिटल बजटिंग के नाम से पहचाना जाता है। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स होने ज़रूरी होते हैं और उनका यूटिलाइजेशन जो है वो करंट फंड के साथ हमें उसका कोऑर्डिनेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर उसका कोऑर्डिनेटर हम अभी प्रॉपर करेंगे तो ही हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कैपिटल बजटिंग के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें लार्ज फंड रिस्क इन्वॉल्व होती है और अनसर्टेनिटी के भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और वो जो है वो इरिवर्सिबल नेचर में हमें आ सकते हैं या फिर हमें उसके रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैपिटल बजटिंग में और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग जब हम करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब हम करते हैं और उसके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लेते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से एनालिसिस हो, इंटरप्रिटेशन हो, तो हमें उसका बहुत ही अच्छे से बेनिफिट होता है और बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज़ में हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप किस तरह से हमें देखने मिलता है और ये वाली सब चीज़ें हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। So friends, here we have understood the definition of management accounting, nature and characteristics of management accounting. Then we have understood scope of management accounting, objectives of management accounting.
Friends, in my next video we will discuss about the difference between cost and management accounting, difference between financial and management accounting. जब हमारे पास ऑलरेडी अकाउंटिंग सिस्टम है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों और किस लिए यूज़ करनी है, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको समझ गया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि थोड़ा सा पार्ट मैंने अभी आपके सामने रखा हुआ है। इसके बारे में और बहुत जानकारी है जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको सब समझ आ चुकी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना ना भूलें। जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब से विनती है कि एक बार आप मेरी चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर दिए गए वीडियोस को देखें और अगर ये आपको यूज़फुल लगते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।